Hello everyone, how are you? I hope you all are fine, and I'm also fine here too. Today you are listening to your English teacher, Master Nayan Thapa. So today we are going to discuss the second chapter of our English book, that is A Gift of Chappal. Let us begin. Mridu is a young girl growing up in Madras with Thapi, her grandmother, and Tata, her grandfather. One afternoon, Thapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousin Lali, Ravi, and Meena. So Mridu was a very young girl who used to live with her grandmother and grandfather, Tapi and Tata. Tapi means grandmother and Tata means grandfather in Tamil language. One afternoon, her grandmother, that is Tapi, takes her to her cousin house, her aunt house, that is Rukumani house. And her cousin were Lali, Ravi, and Meena. Cousin means Chachera bhai. Okay. A smiling Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out, and Ravi pulled Mridu into the house. So when they went to her aunt house, Rukumani opened the door with smiley face. Ravi and Meena rushed out. Rushed means दौड़ के चलना, दौड़ के जाना. Okay, rushed out, दौड़ के बाहर निकला. And Ravi pulled Mridu into the house, and Ravi pulled means खींचना, Mridu into the house. Wait, let me take off my slipper, protested Mridu. So when Ravi pulled uh, when Ravi pulled Mridu inside house, Mridu protested. She said, wait, just wait, let me first put off my slippers. She set them out neatly near a pair of large black ones. So she opened her slipper and kept in front of kept inside of large black ones. There was already a large black shoe. Okay, inside of that she kept her slipper neatly, एकदम साफ तरीके से. Those were grey, actually with dust. You could see the clear marks of every toe on the front part of each slipper. The mark for the two big toes were long and scrawny. So actually that black shoes were grey with dust. डस्ट गंदा लगकर वो ग्रे हो चुका था. And you can clearly see the print of toes on the front part of slipper. Okay, the marks for the two big toes were long and scrawny. Scrawny means thin, पतला, लंबा और पतला. जो उसका two big toes को जो प्रिंट था उसका लॉन्ग एंड स्क्रेनी था. Mridu did not have much time to wonder about whose slipper they were, because Ravi dragged her to the backyard. Backyard. So Mridu did not have much time. उसके पास बहुत समय नहीं था कि ये सोचने के लिए कि वो उस स्लीपर they were, because Ravi dragged means खींचना. Okay, रवि ने उसको खींच के अंदर लेकर गया टू द बैकयार्ड. बैकयार्ड मीन्स पीछे, घर का पीछे जो फील्ड होता है उसको बैकयार्ड कहा जाता है. Behind a thick bitterberry bushes, बैकयार्ड पे एक थिक बिटरबेरी बुशेस, जो एक घास था, थिक बिटरबेरी बुशेस, वहां पर लेकर चला गया. There inside a torn football lined with sacking and filled with sand, lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. So वो जो थिन बिटरबेरी बुशेस था वहाँ पर एक फटा हुआ फुटबॉल रखा था, अ टॉर्न फुटबॉल. ओके, जिसमें क्या था,
बालू भरा हुआ था और वहाँ पर एक छोटा सा प्यारा सा एक बिल्ली का बच्चा था, लिटिल किटन. That kitten was lapping up milk from a coconut half shell. वो बिल्ली का बच्चा कोकोनट हाफ शेल, जो कोकोनट का कवर होता है वो आधा हिस्सा होता है उसको कहता है कोकोनट हाफ शेल. ओके, उसमें से दूध वो पी रहा था. We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing. Poor thing, said मीना. सो मीना ने बोला हमको ये घर के गेट के बाहर मिला, सुबह को घर के गेट के बाहर मिला. ये बेचारे ये बहुत वो कर रहा था, म्याऊ म्याऊ कर रहा था. किसने बोला? मीना ने. इट्स अ सीक्रेट. अम्मा सेज पति विल लीव फॉर आवर पड्डू मामा's house if she knows we have a cat. So उसने बोला ये एक सीक्रेट है. ओके, ये किसी को नहीं बताओ क्योंकि ये एक सीक्रेट है. अगर मम्मा को ये मालूम हो गया कि हम लोग के पास एक बिल्ली है तो वो हमको क्या कर देगा, पड्डू मम्मा के घर पे हमको ले जाकर वहीं पर छोड़ देगा. People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream, "Oh, don't bring that dirty creature here." So, इंसान क्या होता है, जब भी बोलता है कि एनिमल्स को प्यार करना चाहिए, जो जंतु होता है उसको प्यार करना चाहिए, लेकिन जब हम लोग उसको प्यार करता है तो अब क्या बोलता है, वो लोग हमको गाली करता है, हमको डांटता है. क्या बोलकर डांटता है? ओह, वो गंदा क्रिएचर, वो गंदा जानवर इधर मत लाओ बोलकर गाली देता है. सेठ रवि ने बोला. डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन. सो तुमको वो बोल रहा है कि तुमको मालूम है ये किचन में जाकर थोड़ा सा दूध बिल्ली के लिए लेकर आने में कितना तकलीफ होता है. Pati saw me with a glass in my hand just now. I told her, I am very hungry. I want to drink it. But the way she looked at me, had to drink most of it to throw her off the scent. So वो बोल रहा है कि एक थोड़ा सा मिल्क ये बिल्ली के लिए लेकर आने में कितना तकलीफ होता है, तुमको मालूम है. अभी भी हमको क्या हुआ, जब मैं मिल्क लेकर आ रहा था इस बिल्ली के लिए, तभी ने हमको देख लिया, दादाजी ने. ओके, सो वो हमको घूर के देख रहा था, तो उनसे मैंने उनको बोल दिया कि मुझे भूख लगी है तो हम ये मिल्क हम पिएंगे बोलकर बोल दिया. लेकिन दादी जी ने हमको क्या बहुत घूर के देखा, इसीलिए उसका जो डाउट होता है उसको हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ा, इसमें से आधा दूध पीना पड़ा. और जो ओके, देन शी वांटेड द टम्बलर बैक. सो टम्बलर मीन्स गिलास. तो उसको क्या है, दूध पीने के बाद दादी जी को गिलास भी वापस चाहिए था. पति आई विल वॉश इट माई सेल्फ. वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल. आई टोल्ड हर आई हैड टू रन एंड pour the milk into the coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. तो मैंने उनको बोला कि दादी जी हम इस दूध पियेंगे, उसके बाद हम खुद धोकर रख देंगे, क्योंकि मेरे वजह से आपको तकलीफ में क्यों ढालना है. सो आपको कोई तकलीफ नहीं उठाना है, इसको हम साफ करके रख देंगे बोलकर उसने अपनी दादी जी को बोला. और उसके बाद वो
दौड़ के आके थोड़ा सा कोकोनट के जो वो टुकड़ा, कोकोनट का जो कवर होता है, कटा हुआ कवर, उसमें दूध डालकर दौड़ के जाकर उसको धोकर वापस रख दिया ताकि कोई डाउट ना हो बोलकर। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। सो अब हमको क्या करना चाहिए, थोड़ा अलग तरीका ढूंढना है इसको खिलाने के लिए, थोड़ा दूसरा तरीका अपनाना चाहिए इसको खिलाने के लिए, इस महेंद्रन को खिलाने के लिए बोलकर बोला। महेंद्रन, दिस लिटिल kitty's name is Mahendran. Midu was impressed. It was a real name, not just a kitten, not just a cute kitten cat name. So मृदु उस नाम को, महेंद्रन इस बिल्ली का नाम है बोलकर सुनकर उसको बहुत इम्प्रेस्ड हो गया। ओके, क्योंकि वो एक सिर्फ एक प्यारे सी बिल्ली का बच्चा का नाम नहीं था, बल्कि वो एक सच में इंसान का नाम था। Actually, his full name is Mahendran Verma, Pallava, Pune, MP Pune for short if you like. Actually ये बिल्ली का नाम क्या है, महेंद्रन वर्मा, पल्लावा, पुणे। दैट इज, अगर तुमको शॉर्ट में बोलना है तो इसको क्या भी बोल सकते हो, MP पुणे। ओके, ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट। ये एक बहुत ही अच्छे प्रजाति का कैट है, बिल्ली है। ब्रीड मीन्स प्रजाति। ओके, जस्ट लुक एट हिज फर लाइक अ लायंस मेन। सो बोला कि इसका जो फर होता है, इसका जो बाल होता है, इसका बाल देखो जैसे क्या है, एक लायन का मेन जैसा है। सो MAN, मेन का मतलब क्या है, जो लायन का गर्दन पे लंबा लंबा बाल होता है उसी को मेन कहा जाता है। एंड यू नो दैट द एम्ब्लेम ऑफ द एंशिएंट पल्लवी किंग वाज, डोंट यू? ही लुक्ड expectantly at मृदु। सो उसने बोला, रवि ने बोला, क्या तुमको मालूम है पुराने जमाने का एंशिएंट, पुराने जमाने का पल्लवी किंग का एम्ब्लेम क्या है? एम्ब्लेम का मतलब क्या है? एम्ब्लेम का मतलब है सिंबल। ओके, जैसे इंडिया का एम्ब्लेम कोइन पे क्या होता है, पैसे पे, चिल्लर पैसे पे लायन का होता है। ओके, लाइक दैट ओनली। सो डोंट यू, क्या तुमको मालूम नहीं है? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। उसने मृदु को एक्सपेक्टेंटली देखा। एक्सपेक्टेंटली का मतलब है उम्मीद से उसको देखना, एक्सपेक्ट करके। ओके, मृदु गिगल्ड। मृदु गिगल्ड। गिगल्ड मीन थोड़ा सा हंस के, थोड़ा सा हंसना, चेहरे पे थोड़ा सा मुस्कुराहट लेना। ओके, थिंक आई एम जोकिंग, जैसे हम मजाक कर रहे हैं। मृदु ने क्या किया, थोड़ा सा हंसा जैसे कि हम मजाक कर रहे हैं। वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू समथिंग, इट इज क्लियर यू डू नॉट नो अ थिंग। सो उसने बोला, चलो ठीक है, हम तुमको क्या करेंगे, थोड़ा आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग, जो तुमको क्लियर कर देगा। ओके, सॉरी समथिंग, तो तुमको रुको, इसके लिए कुछ प्रमाण के लिए तुमको कुछ वक्त रुको, हम तुमको बताएंगे बोलकर बोला। इट इज क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। तो उसने बोला, तुमको ये बात तो एकदम पक्का है कि तुमको हिस्ट्री के बारे में कुछ मालूम नहीं है। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू? तो उसने बोला, रवि ने बोला, क्या तुम, सॉरी मृदु ने बोला, क्या तुम, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, एक्चुअली रवि ने बोला। तो रवि ने बोला, क्या तुम महाबलीपुरम नहीं गए हो? ही सेड माइस्टीरियसली। एकदम माइस्टीरियसली का मतलब है रहस्यमय,
रहस्यमय तरीके से। ओके, आई हैव वेरी पुअर हिंदी। ओके, सो फॉरगिव मी फॉर दैट। जो मेरा हिंदी है थोड़ा जो हिंदी का वर्ड पावर है थोड़ा कम है, सो फॉरगिव मी फॉर दैट। ओके, वेयर आई वाज, दिस लिटिल किटन, सॉरी। ओके, क्या तुम महाबलीपुरम नहीं गए हो बोलकर पूछा। तो उसने एकदम रहस्य रहस्यमय तरीके से देखा, इन अ mysteriously. Okay, well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his tathas, etc. सो उसने बोला जब हम लोग जो क्लास है हम लोग महाबलीपुरम गया था, तब हमको एक स्टैचू देखा। स्टैचू, डू यू नो व्हाट इज स्टैचू? सो उसने बोला हमने एक स्टैचू दिखा। वो स्टैचू किसका था? तथा मीन्स ग्रैंडफादर, दादाजी। किसका था? दादाजी का बहुत ज्यादा दादाजी के बाद एसेक्ट्रा। ओके, बहुत पुराना दादाजी का स्टैचू था। वेल, सॉरी, फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंसेंट कैट। सो फैक्ट, इस सच्चाई क्या है? ये जो महेंद्रन है ये एक डिसेंडेंट है। डिसेंडेंट का मतलब है किसी चीज से होते हुए आना, जैसे पुराना चीज का डिसेंडेंट। जैसे इन हिस्ट्री, कोई हिस्ट्री ये भी बताता है कि जो ह्यूमन बींग्स है वो एक मंकी का डिसेंडेंट भी है बोलकर बोलता है, राइट। मंकी जो बंदर है उसी का डिसेंडेंट, मतलब वो होते आ रहा है। सो ये बिल्ली भी एक क्या है? उसी महाबलीपुरम में जो स्टैचू था उसी से डिसेंडेंट होते आ रहा है। वेरी सेम एंशिएंट कैट, पुराना उस जमाने का जो बिल्ली था उसी से होते आ रहा है। ये वही ब्रीड है बोलकर बोल रहा है। अ क्लोज relative, scientifically speaking, of none other than the lion। अगर साइंटिफिकली बोले तो ये एक नॉन अदर देन बिल्ली, लायन। ये कोई लायन से वो नहीं है, ये एक लायन जैसा ही है। ओके, द पल्लवा लायन, एम्ब्लेम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी। जो पल्लवा डायनेस्टी है उसका एम्ब्लेम भी एक लायन ही था। रवि went on walking around the bitterberry bush, waving a twig up and down। सो रवि जो उधर बीटरबेरी बुश था, एक झाड़ी था, उसी के चारों ओर वो चलने लगा। ओके, वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन। वेविंग का मतलब किसी का अट्रैक्शन, जैसे हम लोग कोई भीड़ में जाकर आपने कोई देखा तो हाथ नहीं हिलाते हो, वैसे एक ट्विग का मतलब एक प्लांट का जो ट्विग, जो यंग प्लांट होता है ना, प्लांट से जो निकलता है ना एक छोटा सा नया टुकड़ा, वही टुकड़ा हिलाते हुए वो बिटरबेरी बुश में अप एंड डाउन करने लगा, अप एंड डाउन हिलाने लगा। हिज आइज स्पार्कलिंग, उसका आँख चमक रहा था। स्पार्कलिंग का मतलब चमकना। दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नॉन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। ये महाबलीपुरम का ऋषि कैट का डिसेंडेंट है। ये किसी चीज का नहीं, बल्कि ये महाबलीपुरम का जो वो कैट है उसी का डिसेंडेंट है बोलकर बोला। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप कैट इन एंशिएंट इजिप्ट। तो अगर मैं तुमको बता दूं तो ये क्या है,
बहुत पुराने ज़माने का जो इजिप्ट होता है, इजिप्ट जो एक देश है, वहाँ पर क्या करता था, इस कैट को पूजा करता था। ओके, हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, कैसे वो अपने खुद का वॉइस को बहुत पसंद करता था। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक, रवि बता रहा है। उसके बाद ये मीना एंड मृदु जो है वो एक दूसरे को देखा, एक्सचेंज लुक, एक दूसरे को देखा। ओके, व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, उससे यहाँ पर क्या करना है, वो उसका क्या रिलेशन, क्या लेन देन है। मृदु डिमांडेड, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज descended descended from the Egyptian cat god. Oh goddess, bastard, yeah, that's it. तो उसने बोला, मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि ये जो बिल्ली है, पुराने इजिप्शियंस के जो पूजा किया जाता है बिल्ली, उसी बिल्ली का डिसेंडेंट है। ओके, उसी बिल्ली। Well, one of the descendants of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallava ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi florist stoic at Mahendran, MP Pune here. Hupik, Hupik, he strickled, very pleased with himself. So, वेल ठीक है, जो एक इजिप्ट में पूजा करता है एक बिल्ली को, उसी का डिसेंडेंट एक बिल्ली क्या है, पलावा का शिप में छिपके से इधर छिपके से आया। ओके, एंड उसी में से एक डिसेंडेंट महाबली ऋषिकेट है। महाबली ऋषिकेट जो है उसी का डिसेंडेंट है। उसके बाद ये जो ऋषिकेट का डिसेंडेंट है, ये कौन कौन है, रवि ने ऐसे करके हाथ को, सॉरी, उसका जो हाथ पे एक ट्विक था, ओके, उसको एक प्लांट का न्यू प्लांट था जो था, उसने महेंद्रन जो बिल्ली है उसको ऐसे करके हिलाया। उसके बाद बोला, MP पुनिया हियर, हुप इक बोल के वो क्या कर रहा है, एक्साइटमेंट दे रहा है। ओके, ही स्ट्रिकल्ड वेरी प्लेज्ड विथ हिमसेल्फ। सो उसने स्ट्रिकल का मतलब एक थोड़ा हाई पिच में अपना एक्साइटमेंट दिखाना है। ओके, उसने हाई पिच में एक्साइटमेंट दिखाकर हुप एक बोलकर वो अपने आप पर बहुत गर्व कर रहा है, बहुत खुश हो रहा है अपने आप पर। महेंद्रन लुक्ड अप alarmed. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. महेंद्रन ने एक अलार्म जैसा आया। ओके, महेंद्रन में ऊपर देखा। महेंद्रन क्या कर रहा था उस वक्त, अपना जो क्लाउज होता है, अपना जो हाथ का जो नेल्स होता है, वो उसको क्या कर रहा था, रगड़ रहा था, वो कर रहा था, साफ कर रहा था। कोकोनट का जो हाफ सेल है उसी पे साफ कर रहा था। बट वर्स देन रवि ऑफुल हुप एक वॉज अ क्रीच फ्रॉम द विंडो। लेकिन जितना जो रवि ने एक्साइट होकर हुप एक बोलकर एक्साइटमेंट दिखाया था, उससे भी ऑफुल, ऑफुल का मतलब है वेरी बैड। ओके, उससे भी बुरा एक साउंड आ रहा था विंडो से, फ्रॉम द विंडो। व्हाट अ वर्ड साउंड। If Midu was startled, MP Pune was frightened out of his wits. अगर मृदु स्ट्रेटल्ड हुआ, स्ट्रेटल होने का मतलब है जैसे कोई तुमको चुपके से आकर जोर से तुम्हारे सामने डंग बोलकर बोल देगा तो तुम कैसे हो जाए, इससे हिलोगे। वैसे ही जितना वो हिला उससे वो क्या है, मृदु वैसे हिला। उसी वक्त उसी साउंड से जो MP पुणे जो था फ्राइटेंड हुआ, डर गया। ओके, जो बिल्ली था वो डर गया। Here standing on end, he bounced up and curled
towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. So वो क्या है, आपने आपको बचाने के लिए वहाँ से छलांग मारा, बाउंस करके, जंप करके एक बेम्बो का ट्रे था जहाँ पर रेड चिल्ली धूप पे रखा हुआ था उसको ड्राई करने के लिए, वहीं पर गया. ओके, ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट ही टिप्ड अ फ्यू चिल्लीज ओवर हिमसेल्फ. Meow, he howled miserable. He howled miserable. So वो जब जाकर जंप किया, वो खुद को उस जो रेड चिल्ली जहाँ पर धूप पे रखा था उसके नीचे छुपाने के लिए गया, तब क्या हुआ, उसमें से 2-3 चिल्ली गिरकर उसके ऊपर लग गया. ओके, जब लगा तो वो म्याओ करके उसने साउंड दिया. मिसरेबल का मतलब है एकदम अनहैप्पी, इन अनहैप्पी मैनर, खुश ना होना, बिना खुश, जैसे कि थोड़ा दुख के साथ उसने म्याओ किया. ओके, द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन. जो साउंड था वो डिस्टर्बिंग साउंड, जो क्रीचिंग साउंड था वो वेंट ऑन एंड ऑन, वो साउंड आते रहा. ओके, व्हाट्स दैट नॉइस सेड मृदु. मृदु ने बोला वो कैसा साउंड है, किस चीज का साउंड है. दैट्स लली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि. सो रवि ने बोला, एक ग्रंटेड का मतलब बहुत ही धीमी सी आवाज में. ओके, धीमी सी आवाज में रवि ने बोला वो क्या है, लली वायलिन, जो लली वायलिन प्रैक्टिस कर रहा है उसी का साउंड है. She will never learn a thing. The music master just goes on playing like a train whistling on and on. Well, Lily all the time, dearling, going completely off track. So रवि बोल रहा है कि जो लली है वो लली कभी भी क्या नहीं कर पाएगा, वो वायोलिन बजाना नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसका मास्टर क्या है, वो बजाते बजाते चलते जाता है. जैसे ट्रेन जब चलता है तो क्या है, वो हॉर्न मारते मारते चलता है, राइट, वैसे वो चलते रहता है. लेकिन लली क्या है, हर वक्त वो डेयरलिंग, गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक. डेयरलिंग का मतलब है जो ट्रैक है उससे बाहर जाना. ओके, कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, वो जो ट्रैक से बाहर जाने का कारण होता है वही है गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक. सो पार्ट वन कंप्लीट हुआ. सो आई होप you can do this question answer. If you have any problem, if you are facing any kind of problem while doing this work, question answer, you can ask me. Okay, thank you. See you in part 2.